नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नए चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे इश्यूज, रिटायरी साथियों के इश्यूज और न्यूज और विचारों का पता ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड पब्लिक एट लार्ज को लगे एंड और ये मोटिवेट और मोबिलाइज करे रिटायर साथियों को। अब मैं आपको अभी जो लोग सुप्रीम कोर्ट में केस सुनवाना चाहते हैं स्पेशल अलाउंस का ग्रेजुएटी वाला, उसके संदर्भ में मैंने जो वीडियो बनाया और वो 2-3 दिन से मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूँ, तो उसके संदर्भ में इन्होंने क्या कहा है राजेंद्र जी ने और कालिया जी ने, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आज एक आई है दोनों के नाम से, जो हमारे ग्रुप के लीडर हैं, इसको जो देख रहे हैं, जो हम सेंट्रल बैंक की तरफ से मैं हूँ और दूसरे बैंकों की तरफ से 16 पेटिशनर हैं, याचिकाकर्ता, उनकी तरफ से वो क्या कहते हैं। उन्होंने आज डाला है मैसेज उसमें इन सबको देखते हुए, और भी चर्चाएं वो जाती हैं, फोन पे भी करते हैं, हमने भी बात की, हमने पहले मैसेज भेजे हैं, फोन भी किए, कहा भी है, और कई सालों से चल रहा है सिलसिला। तो उन्होंने कहा, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, we understand the anguishness and impatience of our retiree brothers। पता है उन्हें, इसीलिए तो लिख रहे हैं। We understand the anguishness and impatience of our retiree brothers। The scenario of our cases or similar to our cases is the hearings are first preponed but then postponed। Singla's case, welfare and respect to the senior citizens is visible when adjournment is given for 7 months। MC Singla case, the case is undecided at decisive stage। Where the case are decided, the pronouncement of judgments is kept in abeyance for several months। It is said and believed that justice delayed is justice denied। Then how can so many adjournments, sometimes straightway for 7 months, be justified in light of natural justice। हमारे केस में 7-8 महीने की डेट पड़ी है, नवंबर से जुलाई, तो ये तो हो गया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये तो 8 महीने हो गया। We are passing through such a time when the orders of so many quasi-legal platforms like ALC or DLC etc. have no value, maybe because the orders are in favor of working class। So please don't find fault in advocates' ability or doubt laxity on part of petitioners in various other court cases। अब कोर्ट एडवोकेट्स की एबिलिटी पर तो हमने भी संदेह व्यक्त किया था, और भी कई सारे लोगों ने किया हुआ है। थिंग्स शुड बी एनालाइज्ड इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। रेस्ट अश्योर्ड, वी आर कमिटेड फॉर आवर एक्शंस इनिशिएटेड विद योर सपोर्ट एंड असिस्टेंस। रिगार्ड्स, राजेंद्र कुमार एंड के कालिया। एक तो ये इन्होंने आज भेजा है, एक इन्होंने अभी करीबन 10-15 दिन पहले था, शायद डेट तो मुझे ध्यान नहीं रही, ये भेजा था। गुड आफ्टरनून, इन्हीं सब बातों के संदर्भ में जो हमने सवाल उठा रखे थे, और लोगों ने भी, वकील के बारे में। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, यू आर ऑल अवेयर दैट एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स ऑल द केसेस परटेनिंग टू नंबर 1 प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, Number 2 special allowance and updation of pension pending across the country have been kept in abeyance, and our 2 cases, case number 867/2019 and 4532/2019 for the same cause have been made as the lead cases। This means that judgment of our cases shall be applicable universally। Here I would like to add that the counsels for IBA has concealed this fact from the Supreme Court that
there are 2 or perhaps 3 cases which were filed prior to our cases. These cases, one regarding DA and another regarding 26 days for computation of gratuity, have already been decided by Kerala High Court and Hyderabad High Court, respectively. As you all know, once the case is decided by a single bench, next time, be it clarification or revision or any other purpose, it goes before the division bench only. Thus, in the light of the above judgment, we will have to request the Delhi High Court that these cases should now be heard by division bench only. Clubbing or keeping the similar cases pending has brought a lot of responsibility on our shoulders. Our opinion is the petitioners of all the cases kept in abeyance should also appear through their learned counsels. This message needs to be spread so that it may reach all the respected petitioners. Kaliaji, me, and a few other members are thinking of engaging an additional lawyer for the arguments of these cases. This will need additional amount of minimum 3 to 4 lakhs. We will request the members to contribute minimum 600 rupees per head so that we may go ahead with our plan. With warm greetings for the new year and regards, राजेंद्र कुमार। तो ये मैसेज था। अब इन्होंने नए वकील की बात की है कि भाई करेंगे और पैसों का इंतजाम हो भी रहा, कुछ पैसे आ भी गए हैं उसमें और कुछ अभी लोग बाग भेज रहे हैं। तो ये मैंने आपको दोनों पक्ष की बात सुनवा दी, लेकिन हमारा तो कंटेंशन ये है कि दोनों भाई सारे ही वो भी पेटिशनर हैं 61 प्लस या 167 कितने जितने भी हैं वो, उसमें से 167 में तो 16 तो हमारे केस के हैं और बाकी अदर केसेस के हैं। और जो इन्होंने ग्रुप बना रखा है इन सबको मिल करके काम करना चाहिए। हमने तो कालिया जी से, राजेंद्र जी से भी कहा था और इन लोगों ने शायद बात भी की थी वहां, लेकिन बात नहीं बनी। जो भी होगी, लेकिन मिल के काम करने का फायदा ज्यादा होता है। हमारा तो अभी भी यही रिक्वेस्ट है दोनों ही पक्षों से। और हमारी उसमें रिक्वेस्ट ज्यादा सुनी नहीं गई तो इसलिए हम अब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट तो करते ही रहेंगे कि भाई दोनों पक्ष मिल के चले, जब भी फायदा होगा और जब भी बढ़िया होगा। मैंने दोनों पक्षों की दोनों वीडियो में आपको बात बता दी है। धन्यवाद साथियों। नमन। आर के त्यागी गाजाबाद। भारत माता की जय।